ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਆਹੂਜਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਜਸ਼ਪਾਲ ਆਹੂਜਾ, बलवीर आहूजा, बनारसी आहूजा, जसवंत आहूजा, श्रीमती शिव कुमारी आहूजा, हेमा कत्याल, मनीष कत्याल, सतीश आहूजा उर्फ राजू, सपना आहूजा, पूजा सिक्का, रिंकू सिक्का, नैन्सी लुड़ोया, आशीष लुड़ोया, तेजस आहूजा, भुव्य आहूजा, रेवा कत्याल, चाणक्य कत्याल, भुवन सिक्का, दिया सिक्का, नायशा लुड़ोया, ਏਆਨ ਲੜੋਈਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੀਤਾ ਭਵਨ ਮੰਦਿਰ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਫਗਵਾੜਾ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਆਹੂਜਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼੍ਰੀਚੰਦ ਆਹੂਜਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰਾਮ ਪਟੋਲੀ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਫਗਵਾੜਾ ਵਿਖੇ 16 ਮਾਰਚ 1959 ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਘੜ, ਸਿਆਣੇ ਅਤੇ ਹੋਣਹਾਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਸ਼ਪਾਲ ਆਹੂਜਾ, ਬਲਵੀਰ ਆਹੂਜਾ, ਬਨਾਰਸੀ ਆਹੂਜਾ, ਜਸਵੰਤ ਆਹੂਜਾ ਅਤੇ ਲਵਲੀ ਆਹੂਜਾ ਨਾਲ ਗਹਿਰਾ ਮੋਹ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਰੂਟ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੰਨ 1980 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰੀ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਵਿਆਹ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਬੱਚਿਆਂ ਹੀਮਾ, ਸਤੀਸ਼ ਆਹੂਜਾ ਉਰਫ ਰਾਜੂ, ਪੂਜਾ ਅਤੇ ਨੈਂਸੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰੀ ਸੁਖੀ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸਤੀਸ਼ ਆਹੂਜਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚਿਆਂ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸਤੀਸ਼ ਆਹੂਜਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਆਹੂਜਾ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ 1008 ਸਵਾਮੀ ਕੇਸ਼ਵਾਨੰਦ ਪੁਰੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਆਹੂਜਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਮਿਲਾਪੜੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸਨ। ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਸਨ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਮਦਦ ਆਪ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਨੋਂ ਮਨੋਂ ਅਤੇ ਤਨੋਂ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਆਹੂਜਾ ਜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਇਨਸਾਨ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਖੂਬ ਨਾਮ ਕਮਾਇਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਆਹੂਜਾ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪਰਮਾਰ ਤੋਂ ਸਵਾਮੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਘਵਾਨੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਆਹੂਜਾ ਜੀ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜਸ, ਭੁਵਿਆ, ਰੇਵਾ, ਚਾਣक्य, भुवन, दिया, नायशा ਅਤੇ ਏਆਨ ਨਾਲ महक रही है। अपनी यादों को हमारे साथ हमारे बीच में छोड़ के गए। आहूजा परिवार सारा आज शोक समा है और उनको आज जगती है। आहूजा जी को आज अंतिम विदाई करके हम इकट्ठे हुए हैं। उनकी आत्मा शांति के गरुड़ पुराण का पाठ रखा। आज गरुड़ पुराण का भोग भी है और अंतिम विदाई भी है। आज हम सब उनकी आत्मा के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु परमात्मा और उनके बेटे श्री सतीश जी आहूजा को आशीर्वाद देना है। उनकी बेटी को हेमा, पूजा और नैन्सी और उनके परिवार बेटियों का परिवार हमेशा खुश रहे और सारे दोनों परिवार
सभा में बेटियों को भी बर्बाद, बेटे का भी बर्बाद, पूजा बर्बाद, क्योंकि जो जीव चला गया वापस नहीं आता है। हम शोक करते रहें, 100 साल करते रहें, 1000 साल करते हैं, जितनी हमारी आयु है उतने साल तक हम प्रार्थना करते रहें, लेकिन जाने वाला जीव कभी वापस नहीं आता है। जाते समय और जीवन के जो हमारे साथ विविधताएं उनको हम याद करते हैं, तो ऐसी करनी कर चल, जीवन में कहते हैं ऐसी करनी कर चल, जग रोया हम हंसे। लेकिन पूरा भाव है कि जब हम पैदा होते हैं तो संसार में खुशियां मनाते हैं, बेटा हुआ, बेटी हुई है, और अपने कर्म के ऐसे कर्म करते हैं इस संसार को रुलाए में जाते हैं। आज जगदीश आहूजा ने ऐसे ही कर्म किए, अच्छे कर्म किए, अच्छे कर्मों करते हैं, उस जीव को हम याद करते हैं, उस परिवार को याद करते हैं। आज हम एकत्र हुए अच्छे कर्म कर, अच्छे जीव के लिए हम एकत्र होते हैं। कोई बड़े कर्म होते तो कोई नहीं आता है, चंद बंदे भी नहीं आते। तो जीवन कहते हैं उस याद के लिए हम उनके लिए हम याद करने के लिए आज हम याद करते हैं। आज क्योंकि महान आत्मा के लिए अंत विदाई करने के लिए आज तो परमात्मा से हम सब मिल करके प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। बड़े बड़े जीवन में कर्मों का लेखा जोखा भोगना पड़ता है, वैसे कर्म कर चल जग होया हम हंसे। तो माता पिता का कभी हम लेना वो देना में बहुत फर्क है। हम कभी भी कहते नहीं माता पिता को दे दिया, हमने माता पिता को बहुत कुछ दे दिया, माता पिता के कभी भी हम कर्ज से मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि उनकी कृपा नाल हम आज इस जीवन में जी उठे हैं। कोई जज बनाए, कोई अफसर बनाए, कोई वकील बनाए, कोई पुलिस वाला बनाए, कोई नेता बनाए, तो कोई कारखाने का मंत्री बनाए, लेकिन हमारे आज उनकी कृपा से कोई ज्ञानी बनाए, कोई ध्यानी बनाए। माता पिता हमको संसार में जीवन दान देते हैं, पालते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं और आज योग्यता बनाते हैं, हमें संस्कार देते हैं। उनकी कृपा नाल हम उनका लेना उनको दे नहीं सकते। आज तक उन्होंने हमें दिया ही है, हम उनके लिए कुछ नहीं दे सकते। इसलिए उस परमेश्वर के मिलाने पहले अपने माता पिता को मनाना, उनकी पूजा करनी, ईश्वर की पूजा करने से पहले अपने माता पिता की पूजा करनी और गुरु की पूजा। गुरु महाविष्णु गुरुदेव महेश्वराय, गुरु साक्षात परम ब्रह्म। गुरु ही हमारा माता पिता हमारे गुरु में सबसे पहले गिराई उन्हें दी, सबसे तुलना पहले हमको उन्हें सिखाया। उनका दे नहीं सकते। जीवन में गुरु ही हमारा अन्नदाता है और गुरु ही हमारे जीवन दाता है। उन गुरुओं के बीच में परमेश्वर आत्मा तो परमात्मा, जीव जड़ चेतन, जीव अविनाशी, परमात्मा कहाँ नहीं है, टेढ़ी जगह नहीं है, हर जगह वास करता है। तो क्यों नहीं हमारे माता पिता के, ईश्वर के उन आत्मा के अंदर परमेश्वर छिपा है। परमेश्वर कण कण के अंदर है,
कोटि सालिग्राम पत्थर में से पैदा हो सकते हैं, तो क्या नहीं जीव माता पिता के अंदर क्यों नहीं परमेश्वर का वास हो सकता है? गुरुओं के अंदर परमेश्वर को परम परमात्मा कहते हैं गुरुओं को, तो क्यों नहीं अपने माता पिता के अंदर परमेश्वर का वास हो सकता है? इसलिए अपने माता पिता की पहले पूजा करो और फिर उनकी आज्ञा से उस परमेश्वर की पूजा करो जो आकार है, जिसका साकार कभी भी आकार नहीं होता है, साकार। जैसे समुद्र है, अग्नि है, वायु है, तेज है, आकाश है, इनका कोई तत्व नहीं है, कोई मात्र नहीं, जो कि आकार कितना है कोई, जहाँ देखो जहाँ आकाश है, जहाँ देखो पानी है, जहाँ देखो अग्नि है, जहाँ देखो पृथ्वी है, जहाँ देखो वायु, जहाँ तेज है। ये 5 तत्व से बना हुआ हमारा शरीर है। बाहर देखो, अंदर देखो, अपने देखो तो देखो, अपने अंदर झांक कर देखो हम क्या हैं, कौन हैं, क्या करने आए हैं, क्या करके जा रहे हैं, क्यों आए संसार में। जब तक अपने आप को तुझी पढ़ेंगे नहीं, तब तक हम उस परमेश्वर को कैसे देख सकते हैं, उस धर्म पे कैसे चल सकते हैं, उस संस्कार पे कैसे चलते हैं। संस्कार तो जब चलेंगे जब अपने आप को देखेंगे, जब अपने आप से खुद डरेंगे, मैं कौन हूं, उस दिन अपने आप से डरना शुरू हो जाएंगे, उस दिन अपने आप की पहचान हो जाएगी, मैं कौन हूं, उस परमेश्वर की पहचान हो जाएगी, मैं कौन हूं, किसको बनना चाहता हूं, क्या करने आया हूं, क्या करके जा रहा हूं। चलिए पढ़ दी अभी जन अतुलित बलधाम है शैला विदेहम दनुज वनुज शाम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुणनिधानम वानराणाम अधीशम रघुपति प्रिय भवतम वातजातम नमामि। जय जगवंदन नंद के नंदन दुष्ट निकंदन नादन धैया केशव कृष्ण कृपाल प्रदायिनी दानव कंस कंस करैया पाप हरो अघारी हो तुम हम पापी पापिन पाप करैया देर भई तब द्वार निहारो बड़ाई भिक्षु प्रभु प्राणनाथम विभुम विश्वनाथ जगन्नाथ नाथम सदानंद भाषे भवद्रव्य भूते स्वरम भूतनाथम शिवम शंकरम शंभुमी शामी शमशाने वसंतं मनोजं दहन्तं शिवं शंकरं शंभुमी शामीरे। गुरु शंकर भगवान की ईश्वर सेवा में उपस्थित सभा में उपस्थित बंधुवर्ग, बुजुर्गों, भाइयों, ऋषियों, मुनियों, अवतारों को जन्म देने वाली पवित्र आत्माओं, माताओं, बहनों, देवी, जैसा आप सभी को विदित है, हमारे बीच से वो पवित्र आत्मा जिनका सांसारिक नाम श्री जगदीश आहूजा जी, जो अपनी सांसारिक यात्रा को करते हुए श्री नारायण के चरणारविंद की ओर जिनकी रूह अग्रसर हो रही है, उनके निमित्त रखे गए गरुड़ पुराण की समाप्ति रसम उठाला, रसम पगड़ी, इसमें आप सब एकत्रित हुए उस पवित्र आत्मा को श्रद्धांजलि पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए। अपने पीछे
पत्नी शिव कुमारी, पुत्र राजू, पुत्रवधू सपना, पुत्री हेमा, ब्रह्मपुत्र मनीष कत्याल, पुत्री पूजा, ब्रह्मपुत्र रिंकू सिक्का, पुत्री नैन्सी और ब्रह्मपुत्र आशीष, पौत्र तेजस, भुवम और अपने पीछे अपने भाई यशपाल, बलवीर, जसवंत, बनारसी, इतना पूरा परिवार छोड़ करके गए। वैसे तो गरुड़ पुराण में आता है संसार की सर्व संसार, यहाँ से सरकने का नाम संसार है। जो आया है उसने एक ना एक दिन जाना है। जाना मैंने जननी जनक भाई और बहन को जाना, आना जाना जाना मैंने खाना पीना जाना है, शत्रु जाना मित्र जाना, अकड़ मकड़ जाना, राजा राम संपत्ति का जाना जाना जो खजाना है। अरे सब कुछ जाना पर खाक नहीं जाना, यदि उसको ना जाना जिसके पास हमें जाना। अगर उस परम पिता परमात्मा को जानने की चेष्टा नहीं करी तो फिर हमारा आना जाना सब व्यर्थ हो जाता है। आप उस पवित्र आत्मा को श्रद्धांजलि पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए आए। आपकी सच्ची श्रद्धांजलि पुष्पांजलि यही होगी, एक दो बार हरि नाम उच्चारण करें और उसका फल उस दिवंगत आत्मा को प्रदान करें। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, के पेंडे जदों प्यार दे मुक जाते, पेंडे जदों प्यार दे मुक जाते, ते सिर ते वगदियां लाल हनेरियां ने, ओए जेड़े कहंदे सानू मरांगे नाल तेरे, उन्हां सजना भी अखां फेरियां ने, कि जेड़े तोड़ निभाउण दा करन वादा, उन्हां राहियां ने ढालियां ढेरियां ने। ओए शर्माओ उस सरकार दा भजन कर ले, वागा अपने वल जिस फेरियां ने। ओए आशिक सीरतां दे खाने पाल दे नहीं, आशिक सीरतां दे खाने पाल दे नहीं, ते देखण रंग बिरंगियां नहीं सूरतां नूं। ओए इश्क अकल ते शकल नूं वेखदा नहीं, ते मौत वेखदी नहीं महूरतां नूं। के प्यारे प्रीतम दी जात सफात किथे, ते साधु जानदे नहीं कदूरतां नूं। ओए सच्चा साथी है राम प्यारा इको, ते बाकी बेली ने अपनी जरूरतां। मानस कहती है सुर नर मुनि सबकी है रीति, स्वार्थ राग करें सब प्रीति। सबका एक दूसरे से स्वार्थ जुड़ा होता है। कोई पिता बन करके आता है, कोई पुत्र बन करके आया, कोई भाई कोई सखा बन करके आया। जब इस संसार से एक दूसरे का कर्ज चुकता हुआ, वो जिस भी अवस्था में हो उसको उसी अवस्था में ये संसार छोड़ करके जाना होता है। कफन
बंधन बांधे हुए हम सब यार बैठे हैं, कुछ चले गए, बाकी जो है तैयार बैठे। पता नहीं उस परम पिता परमात्मा का बुलावा मनुष्य को कब आ जाए। असरतें मिट जाती हैं, अरमान चले जाते हैं। असरतें मिट जाती हैं, अरमान चले जाते हैं। अरे दिल को बहलाने के सब सामान चले जाते हैं, यादें रह जाती हैं, बस रोने और रुलाने के लिए। देखते देखते सब मेहमान चले जाते हैं, देखते देखते सब मेहमान चले जाते हैं। इस संसार में हम आए हैं, एक ना एक दिन तो हमने जाना है। लाम लद गए अदालता करने वाले, और लाम लद गए अदालता करने वाले, ते पैरे में सिला तासीर ऐथे, आलम लद गए छड़ गए कुतब खाने, ते पैरे गए अफसाना अजीर थे। मौत मारिया नबी पैगंबरानू, ते नजर आउंदे नवली खलील ऐथे, ओए एथों लद गए सबे आराम तलब, ते पैरे गए पलंग रंगीले थे। जिन्हों पिया मुकदमा मौत वाला, चुप्पा वट गए सबे वकील ऐथे, ओए इना डाडा मुकदमा मौत वाला, ना अपील ऐथे ना दलील ऐथे। कोई अपील कोई दलील चलने वाली नहीं है। जब उस परम पिता परमात्मा का बुलावा आता है, हम जिस भी अवस्था में हो, हमें ये संसार छोड़ करके जाना होता है। लेकिन पिता का साया जब संसार से जाता है, एक जगह मैंने पढ़ा था कि 4 लाइनें लिखी थी, आंसू निकल पड़े तो कुछ दर्द घट गया। आंसू निकल पड़े तो कुछ दर्द घट गया, और नदियों का जितना जोर था वो नालों में बट गया। नदियों का जितना जोर था वो नालों में बट गया। मेरे मकाम पर कुल जहां की धूप आ पड़ी, मेरे मकाम पर कुल जहां की धूप आ पड़ी। अरे मुझ पर था जिस पेड़ का साया, वो पेड़ कट गया। मुझ पर था जिस पेड़ का साया, वो पेड़ कट गया। ये छायादार वृक्ष, ये हमारे माता पिता हो गए। हम छायादार वृक्ष जमाने के काम आए, जब सूख गए तो फिर जलाने के काम आए। खंडर समझ करके पुराने मकान को बेचना देना दोस्तों, न जाने सिर छुपाने के लिए कब तेरे काम आए। समझे आप, ये माता पिता का साया ये क्या होता है। पहला पिंड वहां के अधिष्ठाता देव को दिया, इसका इस घर से वो छूट जाए। समझे आप, उनके कार्यालयों में कहना कितने स्वार्थी हैं हम। वहां के अधिष्ठाता देव को दे रहे हैं पिंड, इसका इस घर से वो छुड़ा दो। और दूसरा पिंड फिर कहां दिया, द्वार पर। उनके दा इस महल्ले नालों ही ध्यान हटा दो, अब ये मोहल्ले की तरफ भी ना देखे। दूसरा पिंड वहां दिया, और तीसरा पिंड हमने दिया घड़ा तोड़ने पर। घड़े और पानी का संबंध तब तक है बंधुओं जब तक उस घड़े में पानी है। और हमने अगर घड़े को तोड़ दिया तो घड़े और पानी का संबंध खत्म हो गया। ये शरीर और आत्मा का संबंध तब तक है जब तक ये शरीर है। और हमने इस शरीर को ही भस्मीभूत किया। अब इस आत्मा का इस शरीर से भी कोई संबंध रह ना जाए। हमने
उसको दिया कहां पिंड, उस मृतक आत्मा को कहां पिंड दे रहे हैं? चौथा पिंड फिर वहां दिया शमशान में जाकर के। वहां के अधिष्ठाता देव, वहां के देवता कौन है? भगवान शिव, उनको वो पिंड दे दिया। अब इसका इस संसार से आवागमन आप छुड़ा दी। अब ये संसार से इसका आवागमन छुड़ा दीजिए। अब आप विचार करो, उस जाने वाली पवित्र आत्मा को हमने पिंडदान किया कहां? हम तो अपना पिंड छुड़ा रहे। अरे घर के स्वामी के जाने पर हम घर की शुद्धि कराते हैं, पिंडदान कर प्रेतात्मा से हम अपना पिंड छुड़ाते हैं। कि पूरी उम्र बिताए चाहे कि पुत्र पे कोई आंच न आवे हो। सारी उम्र पिता यही चाहता रहता है, मेरे पुत्र पर कोई आंच न आ जाए। पूरी उम्र बिताए चाहे कि पुत्र पे कोई आंच न आवे हो, पर सबसे पहले पुत्र पिता के तन में आग लगावे। सबसे पहले पुत्र पिता के तन में आग लगावे हो। चौथे से 40वें दिन तक हम हर एक रस्म निभाते हैं। अरे मृतक के लौटाने का कोई जोखिम नहीं उठाते हैं। मृतक के लौटाने का कोई जोखिम नहीं उठाते हैं। ये कुछ हम करते हैं। उस पवित्र आत्मा जो संसार को छोड़ करके गई, उसके निमित्त हम क्या करते हैं? हम उसको सच्ची श्रद्धांजलि पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए हम सब एकत्रित हुए। हमारी वो सच्ची श्रद्धांजलि यही होती है कि हम जो भी भगवत सिमरन करते हैं, उस परम पिता परमात्मा के नाम को लेते हैं, उसका फल उस दिवंगत आत्मा को प्रदान करें। लेकिन उसका साथ हम नहीं दे पाएंगे। जो संसार में आया है वो इकला आया है और इकला ही उसने जाना है। कल्लई कल्ला जाएगा भाई, कल्लई कल्ला कर्मा का फल पाएगा, पछताएगा भाई। कल्लई कल्ला, कल्लई कल्ला जाएगा भाई, कल्लई कल्ला। और जा शमशान च सुटना तैनू मित्रा यारा, बालन दे विच बालना पुत्रा रिश्तेदारा। जा शमशान च सुटना तैनू मित्रा यारा, बालन दे विच बालना पुत्रा रिश्तेदारा। सड़दा सड़दा रोवे मैं किनू वाजा मारा, कौन सुनेगा तेरे दिल दिया आहो सारा। तिनका समझ के तोड़ देंगे, किसे नहीं पैना मल के थला। कल्लई कल्ला जाएगा भाई, कल्लई कल्ला कर्मा का फल पाएगा, पछताएगा भाई। कल्लई कल्ला, कल्लई कल्ला जाएगा भाई, कल्लई कल्ला। इनका समझ के तोड़ देंगे, इसे भी पैना मल के थला। आप लोग शमशान में जाते हो तो डगे तोड़ दे। कई देव जे महान भाव ने वो माचत की दिल्ली कटन के ऊन लगे होंगे। स्वामी प्रारंभ दिया लो करता तोड़ो। गरुड़ पुराण में आपको पंडित जी ने बतलाया होगा किसके लिए दिन के टूटते हैं।
से तेरा मेरा रिश्ता खत्म। अब मान लिया जाए आप किसी की शव यात्रा में गए हो, आपकी उसके साथ कोई रिश्तेदारी नहीं है, आप तो केवल सामाजिक रूप से उसके पीछे गए हो, तो आपको क्या अधिकार है भाई वहां बैठ करके तोड़ रहे हो? आज से तेरा मेरा रिश्ता खत्म, तो तेरा तो उसके साथ रिश्ता था ही नहीं, तोड़ कहां से रहा है? ये केवल पारिवारिक जन तोड़ते हैं, और बड़ा पुत्र जो ज्येष्ठ पुत्र जो अग्नि संस्कार करता है वो तो तोड़ ही नहीं सकता, वो नहीं तोड़ सकता, क्योंकि उसका संबंध तो उस पिता के साथ बना ही रहेगा, वो उससे रिश्ता नहीं खत्म कर पाएगा। रिश्तेदार तिल के तोड़ते हैं, तिल का समझ के तोड़ देंगे, किसने नहीं कहना माल के भला। अरे इक्की नरक ते जून 84 रस्ते विच वै तरनी आसी, फिर मिलना मानुष दा झोला, कट जानी जद जमदी फांसी। फिर मिलना मानुष दा झोला, कट जानी जद जमदी फांसी। के चित्रगुप्त जन खाता देखण, सिर पैना यमराज खला, कल्ला ही कल्ला जाएगा भाई कल्ला ही कल्ला, कर्मा दा फल पाएगा पछताएगा भाई कल्ला ही कल्ला, कल्ला ही कल्ला जाएगा भाई कल्ला ही कल्ला। जिन्ना नहीं तू पाप कमाए, कोई ना तेरा साथ निभाए, जिन्ना नहीं तू पाप कमाए, कोई ना तेरा साथ निभाए। सफर है लम्मा जिंद दिमानी, पावे रख तू कर ले पाए, के मदन सिमर हरि नाम सिमर ले, फड़ ले उस मालक दा पल्ला, कल्ला ही कल्ला जाएगा भाई कल्ला ही कल्ला, कर्मा दा फल पाएगा पछताएगा भाई कल्ला ही कल्ला, कल्ला ही कल्ला जाएगा भाई कल्ला ही कल्ला। संसार में इकला ही मनुष्य आता है और ये संसार छोड़ करके वो चला जाता है। कभी ने लिखा के बाल बने में पिता पुत्र को, कांधे ऊपर खिलावे हो। अब आप ये देखो, माँ कहाँ उठाती है बच्चे को? माँ बच्चे को उठाती है यहाँ या बीच को छड़ सकती है, और पिता का उठा करके काम उठा लेता है हमें, पिता उठा करके बिठाता है अपने कंधों पर, यानी जहां तक मेरी दृष्टि नहीं गई तो उससे भी आगे देख, जिस मुकाम पर मैं नहीं पहुंचा उस मकाम पर तू पहुंच, ये पिता करता है। बाल बने में पिता पुत्र को, कांधे ऊपर खिलावे हो, और कांधा देकर उस दुलार का बेटा बोल चुकावे हो। के माटी की ये काया जब मरघट में जलने आवे हो, अरे राजा हो या रंग सभी की एक दशा हो जावे हो। कि जो हो जितना के जीने वाला जाने वाले को सब यादें दोहरावे हो। जो जितना निकट उसे उतना ही मोह सतावे हो। कौन किसको रोता है बोलू? सब अपने स्वार्थ
उस जाने वाली पवित्र आत्मा को रोता कोई नहीं। पिता जब जाता है तो पुत्र अपने वो सारे उसका जो जीवन का चरित्र चित्रण है वो सारा का सारा वो याद करता है, मेरे लिए मेरे पिता ने क्या किया। आज उस याद को जब वो करता है, उसे याद करता है, तो उसके अश्रु बिंदु गिरते हैं। मेरे पिता ने मेरे लिए क्या क्या किया। जिनकी चिंता में तू जलता वही चिता को जलाते हैं। अरे जिनकी चिंता में तू जलता वही चिता को जलाते हैं। अरे जिन पर रक्त बहाए जल सम वो ही जल में बहाते हैं। जिन पर रक्त बहाए जल सम वो ही जल में बहाते हैं। 4 दिनों की प्रीत जगत में बस 4 दिनों के नाते हैं। अरे पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते छूट जाते हैं। पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते छूट जाते हैं। 4 लाइनों में ये जीवन का एक सार कह दिया कि आदमी के साथ उसका खत्म किस्सा हो गया। अरे आदमी के साथ उसका खत्म किस्सा हो गया। आग ठंडी हो गई, चर्चा भी ठंडा हो गया। अरे आग ठंडी हो गई, चर्चा भी ठंडा हो गया। कि चलता फिरता था जो कल तक बन के वो तस्वीर आज। कि चलता फिरता था जो कल तक बन के वो तस्वीर आज हो गया मजबूर कितना दीवार से जो लग गया। अरे हो गया मजबूर कितना दीवार से जो लग गया। आपकी मेरी सबकी ये दशा हो जानी है। हमारे मरने के बाद हमारी फोटो वो दीवार पर लग जाती है। आप विचार करें, वो पवित्र आत्मा इस संसार से क्या लेकर के गई और हम इस संसार को छोड़ करके जब जाएंगे क्या लेकर के जाएंगे। हमारे लिए वो पिता बन करके आया, किसी के लिए वो भाई बन करके आया और अपने कर्तव्यों को पूरा करते हुए वो संसार को छोड़ करके चला गया। उसके पीछे कहा है, कवि ने लिखा था कि असला तो रोग पुराने आज दे नहीं। असला तो रोग पुराने आज दे नहीं। और तोड़ जान जल बाप ते मुड़ के लब दे नहीं। सब तो ऊंचियां संगता यारो पाप दिया। जेड़े सदके बनदिया किस्मत आप दिया। बाबला वर्गे उमर सारे लभदे नहीं। तुर जान जद बाप ते मुड़ के लभदे नहीं। बाप मरे ते सारे हौसले है जान। एक बाप ही होता है, कण ते थापी मार दिंदा है, तू फिक्र ना कर मैं बैठा। इना कहने सार बंदा चौड़ा होकर चल पैदा कि बाप मरे ते सारे हौसले टह जान।
मुसीबत पै जावन लोग पराए कदे भी नेड़े लगदे नहीं तुर जावन जद बाप दे मुड़ के लभदे नहीं अपनी हर औलाद दी गल नूं सह जांदे होर भी हुइयां दिलां दियां दिल विच लै जांदे किसे भी दुख तो बच्चियां कोलों भजदे नहीं तुर जावन जद बाप दे मुड़ के लभदे नहीं बाप मरे दे वेड़े सुंजे हो जाऊं बाप मरे दे वेड़े सुंजे हो जांदे 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 बूए भी ओटो जांदे कदे किसे नूं बाप गवाचे मिलदे नहीं तुर जावन जद बाप ते मुड़ के लभदे नहीं तुर जावन जद बाप ते मुड़ के लभदे नहीं संसार में रिश्ता ही ऐसा है पिता और पुत्र का बाप सदा यही चाहता है कि जिस मुकाम को बेटे मैंने प्राप्त नहीं किया उस मुकाम को तू प्राप्त करे उस मैं कहा करता हूँ कि जिसके घरों में जीवित माता पिता हैं वो धनाढ्य व्यक्ति है जिन माता पिता की सेवा करे तीर्थ दान किए उन्होंने जिसने अपने माता पिता की सेवा को कर लिया उसे तीर्थों पे भ्रमण करने की जरूरत नहीं उसे इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है उसके तो घर में तीर्थ है आप कभी द्वारकाधीश जाओ उधर एक छोटा सा प्रकरण सुना करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा वहां जब द्वारकाधीश से पोरबंदर को जाते हैं बीच में तो भगवान श्री कृष्ण का एक मंदिर आता है जहां भगवान श्री कृष्ण इस हालत में खड़े हुए भगवान श्री कृष्ण ऐसे हाथ रख के वहां खड़े हुए हमें भी अचंभा हुआ था कि भगवान श्री कृष्ण की जहां की मूर्ति देखी हमने वो टेढ़ी चितवन टेढ़ी सरकार हर चीज टेढ़ी लेकिन वहां भगवान श्री कृष्ण ऐसे हाथ करके खड़े हुए तो पूछा कि भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति और सीधी कैसे आप सुनकर के हैरान होंगे कि क्या बतलाया जब भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश थे द्वारका के राजा थे उनके राज्य में एक व्यक्ति ऐसा था जो अपने माता पिता की सेवा को करता उसके माता पिता को कोढ़ हो गया कोढ़ भी वो जो टपकने वाला कोढ़ वो सुबह उन्हें उठाता उनकी शौच क्रिया इत्यादि करवाना नहलाना धुलाना मरहम पट्टी करनी फिर उनको वो नाश्ता इत्यादि करवाना उसके बाद वो अपना काम शुरू कोई करता था एक बार भगवान श्री कृष्ण ने को जाकर के किसी ने कहा कि आपके राज्य में ऐसा एक व्यक्ति है जो चाहे दिन के 12-1 बज जाए जब तक वो माता पिता की सेवा को नहीं कर लेता तब तक वो अन्न जल ग्रहण नहीं करता एक दिन भगवान श्री कृष्ण उसको देखने के लिए आए तो बाहर से आकर के उन्होंने कुंडी को खटखटाया जैसे ही कुंडी को खटखटाया अंदर से आवाज आई कौन का मैं द्वारकाधीश अंदर आ जाओ बाहर लेने नहीं गया वो अंदर से ही आवाज लगा दी अंदर आ जाओ भगवान श्री कृष्ण अंदर चले गए उसने आंखों से ही प्रणाम किया और कहा कि जब तक मैं माता पिता की सेवा को कर लूं तब तक आप खड़े हो जाओ भगवान ने कहा कि तू अपने माता पिता की सेवा को करता था इसीलिए तुझे देखने के लिए आया और तू मेरे से मिलना नहीं चाहता उसने भगवान से कहा आप आए किस लिए हो मैं अपने माता पिता की सेवा को करता हूँ इसलिए आप आए हो कि हाँ तो फिर मैं माता पिता की सेवा को छोड़ करके आपसे मिलूं जब तक मैं इनकी सेवा करूं तब तक आप खड़े हो
आज भी भगवान मधुसूदन वहां ऐसे हाथ करके खड़े हुए। सो कहने का भाव मेरा ये है, जिसके माता पिता करते हैं, अगर हम अपने माता पिता की सेवा को कर लेते हैं तो हमें उसके दर्शन करने जाने की जरूरत नहीं है। वो दर्शन देने के लिए हमारे घर में स्वयं आ जाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और आदरणीय महाराज जी से प्रार्थना करूंगा कि वो 2 शब्द परिवार के लिए कहें। श्री जगदीश आहूजा जी व उनके धर्म पत्नी, बेटा बेटी, पोते पोतियां व समस्त संबंधी जनों के रूप में आप इस श्रद्धांजलि समारोह में आए हैं। श्रद्धांजलि समारोह में इस संसार के जो रिश्ते हैं उस पर आचार्य जी ने बहुत विशद वर्णन किया। ये संसार क्या है, क्या जाएगा, क्या नहीं जाएगा। और संत महापुरुष कहते हैं कि भाई इस संसार से जब कुछ जाएगा ही नहीं तो तुम्हें इतना दिव्य जीवन क्यों दिया है, ये प्रश्न खड़ा होता है। कर्मानुगो गच्छति जीव एकः, शरीर मरण धर्मा है, क्षणम क्षणम वीर्यते सहस्रका। जन्म लेते ही हर क्षण जो शरीर उड़नशील है, नाश की ओर जा रहा है, उस शरीर कहते हैं और शरीर से संबंधी हम लोग हैं। लेकिन ईश्वर का सुमिरन, ईश्वर का नाम साथ जाता है और उस साधना में कोई नातेदार, रिश्तेदार हिस्सेदारी नहीं कर पाते हैं। जैसे कॉलेज में आप पढ़ते हो तो वहां से क्या लेकर आते हो? नन्हे मुन्ने बच्चों को 2.5-3 साल की उम्र से भेजकर और बड़ा MA PhD डिग्री करता है, उस कॉलेज से क्या एक रेत कण लेके आता है क्या? कोई टैक्स, कोई कुर्सी, कोई चपरासी, कोई मास्टर, कोई टीचर, कोई यार दोस्त साथ नहीं। तो क्या उस कॉलेज से हम कुछ भी लेकर नहीं आते? विचार नहीं करते। वहां से आप नॉलेज लेकर आते हो, वहां से इंजीनियरिंग वकालत लेकर के आते हो और उससे आपके उन तमाम दोस्तों की अनुपस्थिति में सारे स्कूली संबंधियों के न रहते हुए भी आपका नॉलेज जिसके सहारे आप अफसरी करते हैं, ऐसे उस परमात्मा के धाम में शरीर की मेज नहीं जाएगी, ये कुर्सियां नहीं जाएगी बाहर अटारी, ये आपने सुना। और संबंधी भी नहीं जाएंगे क्योंकि शरीर माध्यम कर्म साधन। लेकिन जीव तो है ना, जीव थोड़े ना मरा। मरने की विधि गीता के 8वां अध्याय में, क्योंकि जीने का तरीका, शरीर के लिए धन इकट्ठा करने का तरीका माँ और बाप और सारे रिश्तेदार दे देते हैं, लेकिन उस शरीर के आगे क्या चीज आती है? उसके लिए धर्माचार्य है, उसके लिए शास्त्र है, कुछ तो लेके जाते हो भाई। निरर्थक जीवन, निरर्थक रिश्तेदार नहीं है, ये हमारे धार्मिक कार्य में सहयोगी है। और उस सहयोग के माध्यम से बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने, कपिल मुनि जी की कथा सुनो, देवहूति और कपिल संवाद सुनो, वो धर्म जो है अष्टांग योग का वो निश्चय साथ जाता है। जैसे स्कूल से, कॉलेज से, वहाँ के पदार्थ, वहाँ के रिश्तेदार के रूप में दोस्त तो आपके साथ नहीं आते, लेकिन नॉलेज जरूर साथ रहता है जो आपको आयुष अवसर और क्या क्या बना देता है। ठीक ऐसे ही भगवान ने कहा, अगर तू साधना करके मुझे प्राप्त हो जा, मामो पेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मनां संशयति परमां गतिम्। अगर तुम मेरे को प्राप्त
तो मरणोपरांत कैसे हम प्राप्त? जगदीश जी को हमने देखा, एमसी में भी देखा, क्या है लुधियाना बड़ा हॉस्पिटल, डीएमसी, घर में आकर देखा, अंदर से चेतना थी, शरीर से असक्त था, लेकिन राजू को हमने देखा वो हाथ में गेंद पकड़ा हुआ और गेंद को जब खींचता था वो जोर से पकड़ता था, जब मुंह से बोल नहीं सकता, आंख से देख नहीं सकता, कर्मेंद्रियां निष्क्रिय हो चुके हैं, लेकिन अंतःकरण में जो चेतना है, जितना उसके सामर्थ्य थी उतने वो गेंद को पकड़ता था। हमने देखो ये सेंस है, और इस सेंस में भजन भी होता है, इस सेंस में सुमिरन भी होता है, क्योंकि शरीर का संबंध नहीं है, वो संबंध मन का है। और वो मन के लिए कहा कि भगवान अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, अंत समय में मेरा स्मरण करता हुआ जो शरीर का त्याग करता है मुझे प्राप्त होता है, और जो मुझे प्राप्त होता है पुनर्जन्म न विद्यते, फिर इस पुनर्जन्म को नहीं आता। यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। तो जगदीश एक सच्चा गुरुमुख था, गुरु सेवक था, और उसके सेवकाई पर गुरु घर को पूर्ण स्वाभिमान है, मान है, और उसके तमाम व्यवहारिक और आध्यात्मिक अधूरे कार्यों को पूर्ण करने के लिए ही हमारे सब परिवार है, बच्चों के रूप में, बेटियों के रूप में, पोता के रूप में। जैसे गंगा जी का अवतरण एक फूल नहीं कर पाया, उसके लिए 3 पीढ़ियां लगी लगातार, और तीसरी पीढ़ी को प्राप्त कर गए। तो उनके तमाम अधूरे कार्यों को आशा है आप पूर्ण करेंगे, और भविष्य आपका सुखमय बने, दुख की घड़ी में दुख सहने करने की सामर्थ्य मिले, आपको हौसला दे सदगुरु के रूप में और पूर्वज पितृ के रूप में। जगदीश जी आज भी आपके ऊपर छत्र छाया किए हुए हैं, निश्चित रहना। बोल श्री गुरु महाराज की। गुरु प्रधान जी पवित्र गोद च बैठे मेरी माता शक्ति, मेरे बुजुर्ग, मेरे भरा, अज जिन्ने भी कदम तुसीं सारे चल के आए हैं जगदीश जी की अंतिम शोक सभा दे विच, मैं आहूजा परिवार वालों सारे ही आए हुए जिन्नियां भी मेरी मातावां, मेरे वीर, मेरे भरा, सारे का मैं आहूजा परिवार वालों बहुत बहुत धन्यवाद करना। तो मैं उम्मीद करता जिदा हम तुसीं दुख की घड़ी दे विच सारा इन्नी भारी गिनती दे विच आके परिवार के नाल दुख साझा किया, आने वाले टाइम के विच भी परिवार का सहारा बने रहोगे। ओम शांति शांति। मेरा वालिया साइया रखी चरना दे कोल, मेरा वालिया साइया रखी चरना दे कोल, 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 मेरा वालिया साइया रखी चरना दे कोल।